السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاۃ والسلام علی من کان نبیّا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، خصوصاً علی سیدنا سید بدیع الدین مدار الدنیا ولقبہ مدار العالمین۔ ناظرین کرام، یہ پارٹ 3 ہے۔ پارٹ 1 کے اندر قربانی کا دن، قربانی کس پر واجب ہے، یہ بیان کیا۔ پارٹ 2 کے اندر قربانی کے جانور کے اقسام اور ان کی عمریں اور کس طرح کا جانور قربان کرنا چاہیے وہ بیان ہو گیا۔ ابھی آخری پارٹ 3 ہے جس کے اندر قربانی کرنے کا طریقہ اور قربانی کے جانور کا گوشت کا معاملہ جو بھی ہے کتابوں میں جو آیا ہے وہ آپ لوگ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو اول سے آخر پورا دیکھیے اور آگے شیئر بھی کیجیے تاکہ دوسرے لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو سکے۔ تو بغیر تاخیر کے ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ قربانی کرنے کا طریقہ۔ قربانی کے جانور کو ذبح سے پہلے چارہ پانی دے دیں۔ جب آپ ذبح کرنے کا ارادہ کریں تو اس کے آدھا گھنٹہ پہلا 1 گھنٹے پہلے اس کو پانی اور چارہ دے دیں، اس کو اچھے سے کھلا دے اور پلا دے۔ پہلے سے چھری بھی تیز کر لے۔ یہ خاص دھیان رکھیں کہ آپ قربانی سے پہلے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے سامنے بالکل چھری تیز نہ کرے۔ پہلے سے آپ چھری کو تیز رکھیں لیکن جانور کے سامنے نہیں۔ جانور کو کس طریقے سے لیٹانا ہے تو جانور کو بائیں پہلو پر، بائیں سائڈ پر اس طرح لیٹائے کہ قبلے کی طرف اس کا منہ ہو جائے، قبلے کی طرف اس کا منہ ہو جائے۔ اس طریقے سے اس کو بائیں پہلو پر لیٹانا ہے اور ذبح کرنے والا اپنا داہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دے اور ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھ لے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسولی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر۔ دعا ختم کرتے ہی چھری چلا دے۔ قربانی اپنی طرف سے ہو تو ذبح کے بعد میں یہ دعا پڑھے۔ اگر خود قربانی کرتا ہے تو ذبح کے بعد میں یہ دعا پڑھے اور وہ دعا یہ ہے: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ذبح کرنے میں چاروں رگے کٹے یا کم سے کم 3 کٹنا ضروری ہے۔ اس سے زیادہ نہ کاٹے کہ چھری مہرا تک پہنچ جائے کہ یہ بے وجہ تکلیف پہنچانا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 4 رگے کاٹے یا کم سے کم 3 رگے کاٹے، اس سے زیادہ نہ کاٹے کہ بے وجہ جانور کو یہ تکلیف پہنچانا ہے۔ اسلام میں کسی پر بھی تکلیف پہنچانے کا حکم نہیں ہے۔ اور ٹھنڈا ہونے پر پاؤں کاٹے، کھال اتارے۔ اگر دوسرے کی طرف سے ذبح کیا ہے تو منی کی جگہ من فلاں کہے، جیسے کما تقبلت منی کہا، اللہم تقبل منی، تو منی کی جگہ اگر کسی اور کی طرف سے یعنی کسائی قربانی کر رہا ہے تو مالک کا نام لے۔ منی کی جگہ من فلان، من محمد، من احمد، من علی، اس طریقے کے من حسن، من حسین، اس طریقے کا جو بھی اس بندے کا نام ہو اس کا نام ذبح کرے قربانی کرنے کے بعد میں۔ اگر مشترک جانوروں کی قربانی، مشترک جانور ہو جیسے کہ گائے ہو، اونٹ ہو، بھینس ہو، کیونکہ اس میں 7 حصے دار ہوتے ہیں، 7 شریک ہوتے ہیں، تو من کے بعد لگاتار ان 7 انسانوں کا آپ نام لیں۔ جتنے بھی 7 حصے دار ہیں، من کہنے کے بعد میں ان تمام کا یکے بعد دیگرے آپ نام لیں اور سب شریکوں کا نام لیں۔ اگر دوسرے سے ذبح کرائے تو بہتر ہے کہ خود بھی حاضر رہے۔ اگر آپ دوسرے سے ذبح کروا رہے، کسائی سے، آج کل یہ رواج ہو چکا ہے کہ ہم قربانی کے وقت کسائی کو بلاتے ہیں، تو ہو سکے تو آپ وہاں پر حاضر رہے، یہ سب سے افضل اور سب سے اچھا طریقہ ہے۔ اب قربانی کی گوشت اور خال کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر جانور مشترک ہے یعنی حصے والا جانور ہے تو
तो गोश्त तोल कर तकसीम करे, सबका हिस्सा बराबर तोल कर तकसीम करे, अटकल से न बांटे। अगर किसी को ज्यादा पहुंच गया तो दूसरे के माफ करने से भी जायज न होगा कि ये हक के शरा है। यानी अगर किसी को ज्यादा दे दिया आपने, तो अगर दूसरे ने माफ भी कर दिया तब भी माफ नहीं होगा कि ये शरीयत का हक है, जिसको जितना हक मिलना चाहिए उसे उतना ही हक देना भी चाहिए। फिर अपने हिस्से के 3 हिस्से कीजिए। अब आपके हिस्से में जितना गोश्त आया है उसके कितने हिस्से कीजिए? 3 हिस्से करना चाहिए। आजकल हमारा मामला थोड़ा अजीब हो चुका है कि कुर्बानी का गोश्त हम अपना ही समझ करके सब रख लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। शरीयत ने हमें इसके 3 हिस्से करने का हुक्म दिया है कि एक हिस्सा फकीरों को दे, और एक हिस्सा दोस्तों को और अजीजों को दे, और एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए रखे, खुद भी खाए और बाल बच्चों को भी खिलाए। 3 हिस्से करे। पहला हिस्सा गरीबों में तकसीम करे, दूसरा हिस्सा दोस्तों में, अजीजों में, पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में तकसीम करे, और तीसरा हिस्सा अपने लिए रखे, इसमें से खुद भी खाए और अपने बाल बच्चों को भी खिलाए। अगर घर वाले ज्यादा हो तो कुल घर के सर्फ में भी ला सकता है। अगर ज्यादा हिस्सेदार है, ज्यादा मेहमान है, ज्यादा आपके घर के लोग हैं, मेंबर आपके घर के ज्यादा है, तो तमाम का तमाम गोश्त आप हिस्से में अपने घर के इस्तेमाल में ला सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर कुल सदका भी कर सकता है, अगर आपने चाहे कि मैं तमाम सदका कर दूं, तमाम बांट दूं मैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। अगरचे एक हिस्सा अपने लिए बेहतर है और कुछ हिस्सा आप अपने लिए भी रखें कि कुर्बानी का गोश्त बतौर सवाब खाना चाहिए, उसकी बड़ी बरकतें हैं, बड़ा उसका सवाब भी है। और अगर मैयत की तरफ से, अगर कोई अपने मरहूम की तरफ से करता है तो उसका क्या मसला है, वो भी आप समाअत फरमाइए। अगर मैयत की तरफ से कुर्बानी की तो उसके गोश्त का भी यही हुक्म है। अलबत्ता अगर मैयत ने कहा था, मैयत की तरफ से आप खुशी से करते हैं, मैयत ने आपको नहीं कहा है, तो उसके गोश्त का भी यही हुक्म है जो आपके गोश्त का हुक्म है। यानी उसके भी 3 हिस्से करें, एक गरीबों के लिए, एक अजीजों के लिए और एक खुद के लिए। ये अगर आप मैयत की तरफ से खुशी से करते हैं तो। लेकिन अगर मैयत ने हुक्म किया था कि मेरी तरफ से कुर्बानी कर देना, तो उस सूरत में कुल गोश्त सदका कर दे। अगर मैयत ने वसीयत की थी आपको कि मेरी तरफ से कुर्बानी करना, अब तमाम का तमाम गोश्त सदका करना पड़ेगा, अब आपको उस गोश्त का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुर्बानी अगर मैयत की है तो उसका गोश्त न खुद खा सकता है बल्कि उसको सदका करना वाजिब है। जैसे आपको मैंने बताया कि अगर मैयत ने एक वसीयत की है और आपने कुर्बानी की है तो वो गोश्त आप नहीं खा सकते, उसको आपको सदका करना पड़ेगा। कुर्बानी करने वाला बकरीद के दिन सबसे पहले कुर्बानी का गोश्त खाए कि ये मुस्तहब है, बड़ा सवाब का काम है। कुर्बानी के दिन आप जो आपने अपना जानवर ज़बा किया है, सबसे पहले उसका गोश्त खाइए कि ये बड़ा मुस्तहब काम है और बड़ा सवाब का काम है। कुर्बानी का गोश्त काफिर को न दे कि यहाँ के काफिर हरबी है। कुर्बानी का अगर आप गोश्त आपने कुर्बानी किया है तो आप अपना कितना भी करीबी दोस्त क्यों न हो, अगर वो काफिर है तो उसको आप हरगिज न दे कि यहाँ के काफिर हरबी है, आजाद है। अब कुर्बानी का चमड़ा, झोल, रस्सी, उसका गले में पहनाने वाला हार, ये सब सदका कर दे और चमड़े को खुद अपने काम में भी ला सकता है। मसलन डोल, जानमाज, बिछौना वगैरह बना सकता है, लेकिन बेचकर कीमत अपने काम में लाना जायज नहीं। अगर बेच दिया तो उसकी कीमत को सदका करना वाजिब है। चमड़े को आप अगर जानमाज बनाना चाहे, अगर डोल बनाना चाहे, मुसल्ला बनाना चाहे तो आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप बेच देते हैं तो उसकी कीमत को आपको सदका करनी पड़ेगी, गरीब या मिस्किन को देना पड़ेगा, उसको आप अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते। आजकल अक्सर लोग खाल दीनी मदरसे में दिया करते हैं, ये जायज है। आजकल हम क्या करते हैं, अपने करीब में जो मस्जिद या मदरसा होता है वहां पर अपने जानवर की खाल हम जाकर जमा करा देते हैं, तो ये सबसे अच्छा तरीका है और अफजल तरीका है, तो ये जायज तरीका है। अगर मदरसे में देने की नियत से खाल बेचकर कीमत मदरसे में दे दे तो ये भी जायज तरीका है। अगर आप बेच करके कीमत अदा करना चाहे मदरसे में तो ये भी आप अदा कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कुर्बानी का गोश्त या चमड़ा कस्साब या ज़बा करने वाले को मजदूरी में नहीं दे सकते। हाँ, अगर दोस्तों की तरह हदियतन हिस्सा दिया तो दे सकता है,
जिसकी उसे उजरत में शुमार न करे। कुर्बानी का गोश्त या चमड़ा आप कस्साब यानी कसाई को हदियतन नहीं दे सकते, यानी कि कुर्बानी के बदले में हम आपको गोश्त देंगे या उसका चमड़ा देंगे, तो इस तरीके से आप नहीं दे सकते। हाँ, अगर दोस्त है आपका और मोहब्बत में दोस्ती में अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं, चमड़ा भी दे सकते हैं और उसका गोश्त भी आप दे सकते हैं, लेकिन उजरत में शामिल नहीं हो सकता है। मसला, बाज जगह कुर्बानी का चमड़ा मस्जिद के इमाम को देते हैं, अगर तनख्वाह में न दिया जाए बल्कि बतौर मदद के दे तो हर्ज नहीं है। बाज जगह पे इमाम को लोग देते हैं, तो अगर ये मदद के तौर पर हो, इमाम जरूरतमंद हो और अगर आप उसकी मदद करना चाहे तो आप मदद के तौर पर देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन बगैर मदद के इरादे से आप डायरेक्टली उसको नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों मोहतरम, ये थे कुछ कुर्बानी के जरूरी मसाइल जो मैंने आपकी बारगाह में बड़ी मशक्कतों के बाद में पेश किया है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप तीनों वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और उसको आगे शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों के इल्म में इजाफा हो जाए। और अगर आपको किसी भी मसले में उलझन होती है, समझ नहीं आती है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए और जिनके पास मेरे नंबर है वो मेरे नंबर से भी राब्ता कायम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह किताब और सुन्नत के मुताबिक आपका मसला हल करने की मैं कोशिश करूंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह हमारी कुर्बानियां कबूल फरमाए, हमें भी कुर्बानी करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए, हमारे इस कुर्बानी के जानवर को कबूल फरमाए, हमारे सवाब को कबूल फरमाए और हमें नेकियां अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।